Approach is, yes, yes, Yusra. What is an approach? What approach is? How approach is defined? Yes, yes, Yusra. Do you hear me? Yes, sir. What is an approach? Approach is a way of solving the problem or searching for an answer to a problem. So there are many approaches to study of a subject. There are many approaches to study the uh, tourism geography, which is a branch of knowledge. We talked about that there are some questions we search answers for: what, where, how, when. Okay, there are some questions in all the subjects. There are some questions. So we talked about that there are many approaches to study of tourism geography. There is institutional approach, there is product approach, there is historical approach, there is a managerial approach, there is an economic approach, there is sociological approach, there is interdisciplinary approach. There are many approaches to the study of tourism geography. So we started with product approach, the product approach. In this approach, we take tourism as a product. After that, we discussed about what is a product. Then what is a product? Can anyone tell me? Yes, Intezar is here. Yes, Intezar. What is a Yes, sir. product? How we can define a product? Yes, Yes, sir. So final result of something? final result of something, but uh, we have talked about something else also yesterday. So product is a bundle of needed forms. Yes, Product is the bundle of needs and wants. Fozia, your voice is breaking up. हेलो Yes, ये सर आपने बताया था कि प्रोडक्ट इज द बंडल ऑफ नीड एंड वांट्स। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है लेकिन रुक के कट के आ रही है थोड़ी सी. Okay. सर मैं दोबारा कनेक्ट हाँ yes yes. सर Yes. सर फजिया बता रही थी कि प्रोडक्ट इज बंडल ऑफ नीड एंड वांट। Yes. जैसे कि आपने कल Okay. बताया। Yes. Yes. I couldn't hear her. Yes. Product is a bundle of needs and what to supply to satisfy a bundle of needs and wants. And what are needs and wants? We talked about needs and wants. What are needs and what are wants? Yes. What are needs and what are wants? Can anyone define? Yes. Yes, Intizar. What are needs and what are wants? सर आपका माइक म्यूट है। Yes. Sorry. Yes, Intizar. What are needs and what are wants? How will you define needs and wants? यस सर। सर वे चीजें जो मुझे जरूरत होती हैं जैसे Yes. जैसे आवाज आ रही है सर? Yes, आ रही है आवाज, आप बोले. जैसे जो हमारी सर नीड्स होती हैं जैसे जो जरूरतें होती हैं कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? Type. Can you give any example?
ये सर जैसे कि हम लोग ने कल बात की थी कि अगर कोई अपनी नीड्स के लिए अगर कोई कार या कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं Yes. और जो हमें अपने स्टेटस के लिए खरीदनी है या तो हमें अपने The need is the thing which we would have to be a must. हमें चाहिए ही, that is the need. And want is, yes, कल किसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था. Yes, Mugdha, what are wants? सर वांट्स हमारी सेल्फ डिजायर्ड चीजें होती हैं जो अगर हमारे पास ना भी हो फिर भी तो हमारे भी पास- चलेगा, हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी तो भी चलेगा, बट वी वांट देम, वी एस्पायर फॉर देम. अच्छा, ये नीड्स क्या सारी फिजिकल नीड्स और वांट्स सारी फिजिकल होती हैं या ये साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं? नो सर साइकोलॉजिकल भी होती है. साइकोलॉजिकल, अक्सर हम अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी वी बाय समथिंग, वी एस्पायर फॉर समथिंग. जैसे हमने कल बात करी थी कि परहैप्स अ बेसिक कार इज़ अ नीड, बट अ फ्लैशी कार इज़ अ वांट. बेसिक वॉच इज़ अ नीड, बट अ फ्लैशी एक्सपेंसिव वॉच इज़ अ वांट. और हमने ये भी बात करी थी कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हमारी वांट्स नीड्स में बदल जाती हैं. जैसे हमारा स्टेटस बढ़ता है, जैसे हमारी हायरार्की में वी क्लाइंब ऑन इन हायरार्की, तो हमारी वांट्स हमारी नीड्स हो जाती हैं. बिकॉज वाई हमारी वांट्स हमारी नीड्स क्यों हो जाती हैं? मेनली बिकॉज ऑफ, यस समी फरीद, यू आर हियर. यस सर. यस, हमारी ख्वाहिशें हमारी नीड्स कैसे हो जाती हैं? सर हमारे स्टेटस बढ़ जाता है सर. हमारा स्टेटस बढ़ जाता है, तो स्टेटस बढ़ने से क्या होता है? है, इनकम इंक्रीज होती है. हम पैसे बचा लें. नहीं सर, फिर इंसान के अंदर सर डिजायर वो होती है कि वो ज्यादा खर्च करें उसकी सर. डिज़ायर, यस, डिज़ायर इज अ बढ़ थिंग. जाती है. और भी कोई वजह है जिसकी वजह से हमारी वांट्स हमारी नीड हो जाती हैं? शो ऑफ करने के लिए. शो ऑफ करने के लिए. और तो हम शो ऑफ क्यों करते हैं? वाई वी शो ऑफ? यस, इट्स अ $1 million क्वेश्चन. वाई वी शो ऑफ? यस इफत, हम शो ऑफ क्यों करते हैं? वाई वी शो ऑफ? सर आपका पूरा क्वेश्चन मेरी समझ नहीं आया, दोबारा से रिपीट कर मैं दीजिए. ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि हम शो ऑफ करने की वजह से हमारी वांट्स हमारी नीड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. कि जो हमारी ख्वाहिश थी, व्हाट वी आर एस्पायरिंग फॉर, अब वो हमारे लिए मस्ट हो गई. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि जो हमारी कल वांट थी वो नीड हो गई? यस, एक तो इन्होंने बताया कि यस, सर आई डोंट नो एग्जैक्टली. चलिए, आपको शायद पता है लेकिन आप, यस मुग्धा, हमारी वांट्स हमारी नीड्स क्यों हो जाती हैं, या हम शो ऑफ क्यों करते हैं? हमने बात करी कि वाई वी, इन्होंने बताया कि शो ऑफ करने के लिए. सर नॉट ऑलवेज फॉर शो ऑफ, बट जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल बदलता है वैसे वैसे हमारी नीड्स हमारी वांट्स हमारी नीड्स हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन. तो सर पहले ये नीड मतलब वांट्स में आता था कुछ लोगों के, यस, बट अब ये नीड में है. यस, सो इट्स नॉट फॉर शो ऑफ, बट इट्स नॉट अ शो ऑफ. यस, एंड देयर इज अ, हमने बात करी थी, देयर इज अ सर्टेन प्रेस्टीज इन्वॉल्व विद सम ब्रांड्स. अच्छा, हमारी बात आ गई थी ब्रांड पे. तो व्हाट इज अ ब्रांड? हमारी कल बात यहीं आ गई थी कि व्हाट इज अ ब्रांड. क्यों कोई देखिए, ब्रांड कुछ इस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं सोसाइटी में या मार्केट में,
तो और हम उन ब्रांड्स के लिए उसी चीज़ के लिए जो एक सर्टेन मनी या सर्टेन प्राइस में मिल सकती है, हम वो ब्रांड का सामान उससे कई गुने दाम पे भी ले सकते हैं. तो वाई वी डू दैट? यस, वाई वी डू दैट? क्यों हम उसी के लिए ज़्यादा पैसे करते हैं? और ये मैं आपको बता दूं, हम सब लोग थोड़े बहुत कंजूस होते हैं. यस, वाई वी डू दैट? सर रिलायबिलिटी। हम कोई चीज़ है, सपोज देयर इज़ अ शर्ट, अगर आप मार्केट में जाएं और एक शर्ट ख़रीदना चाहें तो हो सकता है कि वो शर्ट आपको 400-500 में मिल जाए. बट इफ़ यू गो फॉर अ Zodiac shirt, if you go for a established brand, Van Heusen, Zodiac, any brand, you may be knowing better than me, तो आप उसके लिए 2000-3000 भी खर्च करने को खुशी खुशी तैयार है. द सेम शर्ट, सेम फंक्शन इट इज़ गिविंग. तो क्यों हम उसके लिए इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हैं? वाई वी आर रेडी टू डोल आउट मोर मनी फॉर द सेम प्रोडक्ट? रिलायबल होती है। रिलायबिलिटी, हाँ, एक रिलायबिलिटी है एंड देयर इज अ सर्टेन प्रेस्टीज इन्वॉल्व. और रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. वो प्रेस्टीज भी रिलायबिलिटी से ही आती है अक्सर. तो एक रिलायबिलिटी होती है, आपके दिमाग में भरोसा है कि अगर ज़ोडिएक की शर्ट है तो इट मस्ट बी गुड, अगर रेबैन का चश्मा है तो इट मस्ट बी गुड, अगर एप्पल का प्रोडक्ट है तो इट मस्ट बी गुड, isn't it? तो एंड देयर सम प्रेस्टीज इन्वॉल्व, और जैसा किसी ने कहा कि देयर इज सम टेशन इन्वॉल्व, शो ऑफ इन्वॉल्व. हम शो ऑफ भी करना चाहते हैं. तो शो, बात हमारी वहीं आ गई, हम शो ऑफ क्यों करना चाहते हैं? यस आदिल, हम शो ऑफ क्यों करना चाहते हैं? सर खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए. किसके सेटिस्फेक्शन के लिए? खुद के खुद सेटिस्फेक्शन. नहीं तो उससे क्या होगा? क्या सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है जो आप शो ऑफ करते हैं? तो नहीं सर, सोसाइटी या उन्हें स्टैंडर्ड ये नहीं है कि किसी लेवल पे आप हायर क्लास में आएंगे, इसलिए हम तो नहीं, वो आपकी बात सही है फौजिया, यू आर राइट. बट हम कभी कभी शो ऑफ कर रहे होते हैं, है ना? हम कोई सामान लेके आते हैं तो हम लोगों को दिखा भी रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि लोग देखें. Isn't it? Sir, to maintain the prestige. हाँ, to maintain a prestige, and we want that people consider us successful, people consider us wealthy, because in our mind we think that if people consider us wealthy and people consider us successful, they will respect us more, isn't it? We will be noticed more, isn't it? तो ये एक सर्टेन प्रेस्टीज. और बहुत बार ये ब्रांड्स क्या कर रहे होते हैं कि एडवर्टीजमेंट से वो एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट कर रहे होते हैं. तो देयर इज एन एग्जांपल कि सपोज आप एक परफ्यूम बना रहे हैं, यू आर मेकिंग अ परफ्यूम, यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ परफ्यूम. सपोज उसकी एक 50 ml की बॉटल अराउंड 200 में आपकी लागत आती है. ठीक, आप मे बी आई एम नॉट राइट कि 200 में आ जाती है, बट लेट्स से एग्जांपल 200 में बन जाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट 200 की. अब अगर आप उस बॉटल को 200 में बेचेंगे, या मान लीजिए कि आपने प्रॉफिट रख लिया 100 और 200 मान लिया आपने प्रॉफिट भी रख लिया, क्योंकि मेरा अपना मानना है, पता नहीं आपको मानना है कि मेरा अपना मानना है कि अगर आपको किसी बिजनेस में 40% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो अगर आप इकनॉमी ऑफ स्केल नहीं है, बहुत बड़ा लेवल नहीं है आपके बिजनेस का, तो यू आर गोइंग टू बी डूम्ड. थोड़े दिन बाद आपकी बिजनेस बंद हो जाएगी.
अगर 40% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत बड़ी लेवल पे ना हो, 1000 प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो आप। ओके, सो हम सपोज हमने मान लिया कि 200 इसका प्राइस, इसका हम प्रॉफिट ले लें, और चलिए हम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट और ओवरहेड्स लगा के 500 में बेच रहे हैं एक 50 ml की बॉटल, तो क्या होगा? बिकेगी? एक परफ्यूम की बॉटल हम 550 ml की बेच रहे हैं, तो क्या होगा? अगर आप मार्केट में जाएंगे तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ द मार्केट? यस, व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ सर द वो मार्केट? बिकेगी। बिकेगी? किसको, कौन खरीदेगा? सॉरी सर। कौन खरीदेगा? हु विल बाय दैट बॉटल? So the middle class people. Yes, the Because middle perfume class or is lower still middle not- class people, yes. Yes sir. तो लेकिन अगर आपका टारगेट वो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है तो इट्स गुड, बट इफ़ योर टारगेट इज, देखिए हर प्रोडक्ट का एक टारगेट होता है, टारगेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है। अगर आप एलीट क्लास को बेचना चाहते हैं देन सर उसकी पैकिंग में थोड़ा सा चेंज करेंगे और खाली उसका पैकिंग, कॉस्ट हाई कर देंगे। कास्ट हायर करेंगे। ओके, पैकिंग में तो Yes, आप sir. चेंज करेंगे ही, पैकिंग थोड़ी सी थोड़ी ज़्यादा फ्लैशी, थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, थोड़ी ज़्यादा एलिगेंट आपको बनानी होगी, एंड यू विल हैव टू इंक्रीज अ प्राइस। होना ये चाहिए था कि इंडिया की मार्केट बहुत प्राइस कॉन्शियस है, होना ये चाहिए था कि जब हम प्राइस इंक्रीज करते तो पैसे कम, सॉरी उसकी सेल कम हो जाती, लेकिन यहाँ क्या होगा? व्हाट विल हैपन? द सेल विल इन ऑल लाइवलीहुड इट विल इंक्रीज। तो हम कितने की बेचे हैं वो बॉटल हम? यस मुग्धा, सपोज एक 50 ml की सर अराउंड starting from 1500 to we can sell it up to 3000 or 4000. 3000 4000 की अगर होगी वो बॉटल तो वो एलिट क्लास को लगेगा कि इट्स अ गुड परफ्यूम। अगर आप सेम परफ्यूम 500 की उन्हें बेचेंगे तो उन्हें लग रहेगा कि ये चीप प्रोडक्ट है या ये हार्मफुल होगा हमारे स्किन के लिए या क्या है, isn't it? और हम मतलब दे विल नॉट फील सेटिस्फाइड। वो तभी सेटिस्फाई फील करेंगे, कभी कभी जब आप कस्टमर को लूटते हैं तभी वो सेटिस्फाइड फील करता है, isn't it? ऐसा है या नहीं है? या सादिल, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। यस यस यसरा, सर वो सोचते हैं कि मतलब अगर प्राइस ज्यादा है तो एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है, और Good जितना quality सस्ता होगा product नहीं चीप होगा, yes. क्वालिटी है। और अगर आप एक सर्टेन लेवल के ऊपर आपकी इनकम है, सपोज योर इनकम इज 10 lakhs पर मंथ, तो आपको लगेगा कि 500 का प्रोडक्ट इट इज़ नॉट गुड फॉर मी, क्योंकि चीज़ें डिसाइड होती हैं आपकी मंथली या सालाना इनकम से। जो आपकी इनकम है उस पर आप डिसाइड करते कि आपको कितना तो अमीर, अच्छा वेल, जैसे हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं वेल ऑफ पीपल, तो व्हाट इज़ दिस वेल ऑफ, या अमीर कह लें आप सिंपल ज़बान में, या ठीक ठाक अच्छी प्रॉस्पेरस जिसको कहते हैं, बड़ी प्रॉस्पेरिटी की बड़ी दुआ दी जाती है, ख़ास करके आई थिंक इन दिवाली, है ना, जो सारे मैसेजेस आते हैं उसमें प्रॉस्पेरिटी का बड़ा जिक्र होता है। क्यों मुग्धा? मेरे पास तो जितने Yes, sir. मैसेजेस आते हैं उसमें मुझे प्रॉस्पर बनाने का, अगर वो सारी दुआएं कबूल हो जाएं तो मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊं। तो आपको सबको जी भी सर, आते हो, क्योंकि दिवाली पर गॉडेस लक्ष्मी की पूजा लक्ष्मी की होती है, पूजा होती है। इसीलिए। तो ये खाली बात लक्ष्मी की नहीं है, बात प्रॉस्पेरिटी की है ना? तो व्हाट इज अ No प्रॉस्पेरस? sir, Lakshmi is not about money, it's about prosperity. अबाउट
So Lakshmi is not just about money; it's about whole prosperity. होल आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड Prosperity. प्रॉस्पेरिटी. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि Yes, sir. प्रॉस्पेरिटी, व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी, मैं आपको वही डिफाइन करने को कह रहा हूँ. व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी, किसको हम कहते हैं, कब आपको लगता है कि आप प्रॉस्पेरस हो, किस पर्सन को आप प्रॉस्पेरस कहेंगे, किस पर्सन पे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये प्रॉस्पेरस है. सपोज वी टेक अ मार्केट बिहेवियर, तो हम किस पर्सन को अमीर कहते हैं या प्रॉस्पेरस कहते हैं. यस, यस आदिल. Adil, do you hear me? आदिल. यस सर. हाँ, किसको हम प्रॉस्पेरस कहते हैं? क्योंकि देखिए, ये जो ये प्रोडक्ट अप्रोच है, ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं. जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं, अगर आप कोई टूर पैकेज बेच रहे हैं तो और किसी अमीर को बेचना चाहते हैं और बहुत सस्ते में बेचना है, तो परहैप्स ही विल नॉट टेक इट. हालांकि इंडिया की मार्केट बहुत प्राइस कॉन्शियस है, बट परहैप्स ही विल नॉट टेक इट. जैसे हमने देखा है, हमने परफ्यूम के एग्जांपल में देखा है, तो क्योंकि उसे लगेगा कि शायद अगर आप मैं एक होटल खोलूं और क्योंकि होटल इज़ अ वाइटल एलिमेंट ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट, तो अगर मैं एक होटल खोलूं तो अगर वो उसका डेली रेंटल बहुत कम है, तो एलिट क्लास को लगेगा कि इट्स नॉट अ गुड होटल. समझे? तो किसको हम प्रॉस्पेरस कहते हैं? तो वन शुड बी प्रॉस्पेरस टू बाय अ गुड प्रोडक्ट. और जब आप ज़्यादा पैसे देगा आपका कस्टमर, तभी आप पैसे कमा रहे होंगे. समझे? और हम सब जो भी प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हैं और बेचते हैं, तो आवर अल्टीमेट एम इज़ टू one of the ultimate aim is to get profit. Yes, yes Adil. किसको प्रॉस्पर, anyone of you, किसको हम अमीर कहते हैं? मार्केट बिहेवियर को अगर हम देखें तो हम किसको अमीर कहते हैं? सर अगर इस अप्रोच से आंसर दिया जाए तो ये होगा कि जो मटेरियल टर्म में सक्सेसफुल है. नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि किस इंसान को आप अमीर कहते हैं, किसी इंसान के किस बिहेवियर से आप उसे अमीर कहने लगते हैं. कि अगर आप मार्केट में हैं, मार्केट सर्वे कर रहे हैं, कोई आप लोगों को ऑब्जर्व करिए कि हाउ दे आर बाइंग एंड व्हाट दे आर बाइंग, तो उनके किस बिहेवियर से आपको लगता है कि ही और शी इज़ प्रॉस्पेरस, ही और शी इज़ हैज़ मनी, और प्रॉस्पेरस और सक्सेसफुल. सर वो अपनी डिजायर को अगर सेटिस्फाई कर ले खुद से अपने मन. तो एनीवन ऑफ, देखिए मेरा इसमें थोड़ा सा अनकन्वेंशनल व्यू है, लेकिन आप लोग अपना बताइए. मेरा सर प्रोस्पेरिटी में, यस बोलो. सर प्रोस्पेरिटी में सर एक तो अबंडेंट हेल्थ, अबंडेंट वेल्थ. लाइक फॉर एग्जांपल वो अगर कुछ भी अफोर्ड करना चाहता है तो वो कर सकता है. एग्जैक्टली, यस. लेकिन मैं मार्केट बिहेवियर की बात कर रहा हूँ. सॉरी सर, मैं मार्केट बिहेवियर की बात कर रहा हूँ कि कब आप किसी पर्सन को देख के किस बिहेवियर से उसके कहते हैं कि आप मान लीजिए उसके बारे में बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं जानते, आप कब कहने लगते हैं कि ही और शी इज प्रॉस्पेरस? सर उसका मेंटेनेंस देख के खुद के लिए. मेंटेनेंस मतलब वो कैसे क्या पहनता है, किस तरह नहीं, रहता है. मैं मार्केट बिहेवियर की बात कर रहा हूँ. Yes, इंतज़ार, you are right, but I'm talking about something else here. मैं उसके कपड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं उसके अपकीप की बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं वो किस कार से आया इसकी बात नहीं कर रहा. मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो क्या करता है शॉप में कि आपको लगता है कि इसके पास पैसे हैं. He must be rich. Who buy branded things? Yes, branded products, yes, Ifat. the costly of branded products. इफ़त, बहुत आवाज़ आपकी नहीं आ रही. यस, सर जो ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें खरीदता हो वो. और ख़रीदते वक्त देखिए मुझे लगता है कि
Yes. मेरा अपना व्यू एक्सपेंसिव चीज एक्सपेंसिव चीज़ खरीदता है। अच्छा, आप अगर जाते हैं सब्ज़ी खरीदने या फ्रूट्स खरीदने तो आप कैसे खरीदते हैं? यस। सर एक नॉर्मल आदमी जो होता है ही गोज टू द मॉल, वो क्या होगा कि वो उसने प्राइस टैग देखा वो 2 बार सोचेगा। बट अगर कोई प्रॉस्परस है, मतलब कि इट हैज़ अ गुड वेल्थ, तो उसने देखा हाँ उसको पसंद आया, उठा के उसने फौरन रख दिया। एग्जैक्टली यही मैं आना चाहता हूँ। वो पैसे नहीं देख रहा होता और बहुत बार वो पैसे पूछ ही नहीं रहा होता है, बहुत बार वो प्राइस टैग नहीं देख रहा होता है, isn't it? तो मैं तो उससे प्रॉस्पेरस कहता हूँ जो पैसे नहीं पूछ रहा होता। वो सामान उठाता है, बास्केट में रखता है और उसे पे कर देता है। वो सोचता भी नहीं है कि ये कितने का होगा। ऑफ कोर्स बहुत महंगी चीज़ नहीं खरीदता, जो जो उसके मीन्स हैं। तो वो तो मैं उससे प्रॉस्पेरस कहता हूँ। तो आप किसको प्रॉस्पेरस कहते हैं मुझे नहीं पता, तो वही मैं जानना चाहता था कि आप किसको प्रॉस्पेरस कहते हैं। मैं उसे प्रॉस्पेरस कहता हूँ जो प्राइस टैग, जैसा अहद ने कहा कि वो प्राइस टैग बहुत या तो नहीं देखता या देखता है तो वो बहुत कम देखता है। सो आई कॉल हिम प्रॉस्पेरस। तो ये प्रॉस्पेरिटी है। चलिए हाँ, बहुत हो गई बात, ये तो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रही है। तो ब्रांड का एक एलिमेंट है और जो कि टूरिज्म में बहुत इम्पोर्टेंट है। दे आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स। हम ब्रांड की बात अभी कर रहे हैं थोड़ी देर में। दे आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, एक तो टैंजिबल और एक इनटैंजिबल। व्हाट इज दिस? There are some tangible goods and there are some intangible goods. ये दिख रहा है आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको? Perhaps yes, there are some tangible goods. दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? सब दिख रहा है, ओके। So there are some tangible goods and there are some intangible goods. Yes. ये tangibility और intangibility क्या है? Anyone can tell me? ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। Yes, sir. So tangible वो है the things which we can touch, and intangible which we cannot touch but we can feel them. यस, जो हाँ जिस चीज़ को वो प्रोडक्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो टैंजिबल कहलाते हैं और जो हम नहीं टच कर सकते वो इनटैंजिबल कहलाते हैं। एनी एग्जाम्पल? अब बोथ? सर व्हीकल, गैजेट्स। यस, सर व्हीकल, गैजेट। ये तो टैंजिबल है। यस सर। यू कैन टच इट और नॉट, सर आई कैन टच इट। तो दैट इज टैंजिबल। इनटैंजिबल, एनी एग्जाम्पल ऑफ इनटैंजिबल गुड? Nature. इनटैंजिबल प्रोडक्ट? यस, ब्रांड यस समी? ब्रांड ब्रांड यस, ब्रांड इज, बट मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ इस वक्त। क्योंकि दिस पेन इज टैंजिबल, राइट? तो कोई इनटैंजिबल, एनी एग्जांपल ऑफ इनटैंजिबल प्रोडक्ट? म्यूजिक यस, म्यूजिक यस, म्यूजिक इज एन इनटैंजिबल। लेकिन ये प्रोडक्ट है, यू बाय म्यूजिक, यू बाय मूवीज, बट दे आर नॉट, दे कैन नॉट बी टच्ड। तो टूरिज्म प्रोडक्ट की एक ख़ास बात यह है कि ये अक्सर इनटैंजिबल होता है। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हम अक्सर गुड्स को टैंजिबल और इनटैंजिबल के खाने में बांटते हैं, बट देयर इज़
some intangibility in all products. थोड़ी सी intangible element हर प्रोडक्ट में होता है, क्योंकि आप सिर्फ सामान नहीं खरीद रहे होते हैं, आप साथ में वो फीलिंग भी खरीद रहे होते हैं. जहाँ तक हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि रेबैन का चश्मा सिर्फ चश्मा नहीं है, या ज़ोडिएक की शर्ट सिर्फ शर्ट नहीं है. देयर इज सर्टेन प्रेस्टीज एंड फीलिंग इन्वॉल्व, तो उसका वो इनटेंजिबल एलिमेंट है. जो टूरिज्म प्रोडक्ट है, जो टूरिज्म पैकेजेस हैं, वो ज़्यादातर इंटेंजिबल होते हैं. मतलब उसका इंटेंजिबिलिटी कोएफिशिएंट बहुत हाई होता है, इंटेंजिबिलिटी परसेंटेज बहुत हाई होता है. तो आपको क्या लगता है कि कौन सा गुड ज़्यादा अपीलिंग होता है लोगों के लिए, टेंजिबल और इनटेंजिबल? यस. किसके लिए आप ज़्यादा पैसे, देखिए सारी बात यहाँ मनी पे आती है कि किसके लिए आप ज़्यादा पैसे पे करने को तैयार हैं, टेंजिबल या इनटेंजिबल? intangible, sir. Sometimes we also buy tangible things to get intangibility. Yes, you have given a very good line. Can you repeat it? Yes, Abdul. I said that sometimes we buy tangible things to get the intangibility. Yes, sometimes we buy tangible things, tangible products to get intangible feeling. ये क्योंकि सर्टेन फीलिंग इन्वॉल्व है, वही हमारे उस सवाल का जवाब. वो जो हम ज़्यादा वाले पैसे पे कर रहे हैं वो उस फीलिंग के लिए पे कर रहे होते हैं, इनटेंजिबल. लेकिन टूरिज्म प्रोडक्ट ज़्यादातर इनटेंजिबल है. तो क्या हमें इसको टेंजिबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए? Do we need to make its tangibility, to increase its tangibility? No, sir. Yes, Mugdha. No, sir. No. Sir, if we increase the tangibility, automatically the intangible feeling will also increase. So we need to increase the tangibility. How we can increase the tangibility of the tourism product? How we increase the tangibility of the tourism product? Yes. By increasing the number of places that can be visited in that particular package of tour. Yes. और लेकिन एक बहुत सिंपल एक्टिविटी क्या करते हैं हम लेते हैं फोटोग्राफ्स. देखिए टूरिज्म आर टूर्स आर ऑल अबाउट मेमोरीज. व्हाट वी आर डूइंग इन टूरिज्म, वी आर क्रिएटिंग मेमोरीज. तो हम उस मेमोरी को टेंजिबल बनाने के लिए व्हाट वी डू, वी टेक पिक्चर्स, है ना. फर्स्ट थिंग वी टेक पिक्चर्स, वी टेक फोटोग्राफ्स, कि फिर हम वो देखें तो वो उसमें थोड़ा सा एक टेंजिबिलिटी का एलिमेंट शामिल हो जाता है. प्लस व्हाट वी डू ऑन टूर्स, यस फौजिया, हम टूर्स पे क्या और करते हैं फोटोग्राफ्स लेने के अलावा कि जिससे टेंजिबिलिटी एलिमेंट बढ़ जाता है. जब हम घर लौट के आएँ तो हम हमें पर कुछ टेंजिबल एलिमेंट होना चाहिए मेमोरीज के अलावा. शॉपिंग करते हैं. वी शॉप. यस मुग्धा, वी शॉप. और वी शॉप गिफ्ट्स फॉर पीपल बैक होम. और एक और चीज़ करते हैं, पता नहीं आप, लगता है आप लोग ज़रा ज़्यादा टूर्स पे नहीं गए. यस समी, इनमें से कौन थोड़ा ज़्यादा घूमा है आप में से? आपने किसने ज़्यादा टूर्स पे गया है, ट्रैवल किया है? मैं तो ज़्यादा नहीं गया सर, कम ही गए. देखिए व्हाट वी डू, वी बाय सोवेनियर्स समझते हैं? एनी ऑफ यू? Yes, sir. तो वी बाय सोवेनियर्स. कि सोवेनियर्स क्या होते हैं मुक्ता? व्हाट आर सोवेनियर्स? So, for example, अगर हम आगरा गए तो सर ताज का एक छोटा सा मॉडल लेके आते हैं. यस. अगर आप पेरिस गए तो आप एक एफिल टावर का एक मॉडल लेके आते हैं, उसके शक्ल की कीरिंग लेके आते हैं, isn't it? अगर आप लंदन गए तो परहैप्स यू विल बाय अ सोवेनियर ऑफ बिग बेन, उसकी शेप की घड़ियाँ या उसके शेप के की रिंग्स, या वो लंदन की जो बसेस हैं वो आप लेके आते हैं.
या आप अगर कहीं कहीं हम इंडिया में बहुत अगर आप बदायूं गए तो आप पेड़े लेके आते थे, अगर आप अलीगढ़ गए तो अलीगढ़ से क्या लेके जाते थे लोग घर? कैन एनीवन टेल मी? मटरी मटरी, यस, मटरी लेके जाते थे, और ताले भी कुछ लोग ले जाते थे। जो चीज़ मशहूर हो उस जगह की, या जिस चीज़ से उस जगह को एसोसिएट किया जाता है, वो उसका कोई मॉडल या उसका कोई रेप्लिका लेकर आप जाते हैं। दीज आर कॉल्ड सोवेनियर्स। तो ये हम अपने जो लोग हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनको, या एक्विंटेंस हैं, उनको हम देते हैं, और ये टेंजिबिलिटी बढ़ा रहा होता है उसे। वो याद, एक तो वो गिफ्ट देना रिलेशनशिप थिंग है, और उसके अलावा वो आप उसको याद दिलाता है कि आप, और कुछ सोवेनियर्स आप खुद भी ला के रखते हैं। तो एनी एग्जांपल ऑफ एनी सोवेनियर? जैसे मुग्धा ने एक एग्जांपल दिया कि हम ताजमहल का एक मॉडल लेके आते हैं। एनी अदर? यस यस युसरा, एनी अदर एग्जांपल? और क्या मिलता है मार्केट में जो सर कोई वहाँ की जैसे कोई फेमस फूड होता है, जैसे आगरा जाते हैं तो वहाँ यस से हम एक- कुछ फूड लेके आते हैं, जैसे पेठा लेके आते हैं। छोटे छोटे सोवेनियर्स आजकल एक फ्रिज पे, आप रेफ्रिजरेटर पे अपने लगा देते हैं, उस तरह के सोवेनियर्स लेके आते हैं। तो ऑल टाइप्स ऑफ सोवेनियर्स वी बाय, एंड तो हम क्या कर रहे होते हैं? एक्चुअली हम टेंजिबिलिटी बढ़ा रहे थे उन फोटोग्राफ्स से, उन सोवेनियर्स से, उन चीज़ों से हम अपनी टेंजिबिलिटी बढ़ा लेते हैं। अगर आप यूरोप जाएं तो वो एक बहुत स्पेशल काम कर रहे होते हैं, हो सकता है अब इंडिया में भी होने लगा हो। वो बहुत सारे फोटोग्राफ्स आपको ऐसे करके देते कि जैसे पेपर वेट होता है शीशे का, तो उसमें वो आपकी फ़ोटो दिखने लगे, या कोई और इस तरह का आपका वैक्स मॉडल बना के दे देते हैं, तो वो एक सोवेनियर हो जाता है। यस अब्दुल्ला है, फोटो फ्रेम्स सर। ये फोटो फ्रेम्स होते हैं, और कभी कभी मतलब क्यूब्स होते हैं, ग्लास क्यूब्स होते हैं, वो आपकी फ़ोटो खींच के उसे ऐसे उसमें कर देते हैं जैसे कि उस ग्लास फ्रेम के अंदर आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नए उन्होंने इन्वेंट किए हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, आप किसी बड़े होटल में टिके हैं कभी जाकर, किसी अच्छे होटल में? यस, अगर आप किसी अच्छे होटल में टिके हो तो आप कभी देखेंगे कि वो आपको एक वेलकम किट देते हैं अक्सर, शैम्पूज एंड सोप्स, यस, और उन पे या इस तरह की और कोई टॉयलेटरीज या कुछ और सामान जो आप रोज़ यूज़ करते हैं, और उस पे उस होटल का नाम लिखा होता है, isn't it? यस सर। अच्छा, वो कुछ हमारी हिंदुस्तानियों की, हम लोग बहुत बदनाम भी हैं इस मामले में कि वी ग्रैब दोज थिंग्स और हम उसे चुपचाप अपने सामान में रख लेते हैं और ले आते हैं। तो बहुत हम ये समझते हैं कि हमने शायद कुछ इलीगल काम किया, हमने वो सोप छोटे मोटे उठा लिए। अक्सर, मैं हमेशा नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा सामान उठा लाइए होटल से, अक्सर वो होते ही इसीलिए कि आप उसे ले जाओ। अब उस होटल का नाम उस पर लिखा हुआ है, तो अक्सर तो वो क्या करेगा, आपके घर रखा होगा, तो दैट विल increase the tangibility of hotel service, and it will do a dual purpose of publicity also. होटल की पब्लिसिटी भी हो रही है उससे, isn't it? So yes, what hotel is doing here is it is increasing the tangibility of its product. या आप कभी कभी किसी स्पोर्ट्स इवेंट में जाते हैं तो दे गिफ्ट यू अ टी शर्ट जिस पे कि उसका नाम लिखा होता है, तो दैट इज इंक्रीजिंग अ टेंजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट।
इलेक्शन टाइम में सर ये भी बताया था, टी शर्ट पे नाम लिखा होता है। Yes. तो that is increasing the tangibility of the feeling, और वो publicity भी कर रहा होता, दोनों चीज़ें हैं। तो what we discussed today that tourism product, and there is a element of tangibility and intangibility of in any product. हम लोग बांटते ऐसे हैं कि ये प्रोडक्ट टैंजिबल है, ये इनटैंजिबल है, लेकिन देयर इज अ सर्टेन इंटैंजिबिलिटी इन्वॉल्व इन tangible products, and there is some intangibility involved in tangible products, and there is some tangibility involved in intangible products. ये दोनों एलिमेंट हर प्रोडक्ट में होते हैं, क्योंकि अगर आप एक बड़े प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो इंटेंजिबिलिटी फीलिंग ज़रूर होती है उसमें। और जैसा परहैप्स अहद ने कहा कि बहुत अच्छी लाइन दी कि हम बहुत बार टैंजिबल प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं टू गेट दी इंटेंजिबल फीलिंग। तो टूरिज्म इज़ ऑल अबाउट फीलिंग, टूरिज्म इज़ ऑल अबाउट, और इंटेंजिबिलिटी एलिमेंट बहुत ज़्यादा है टूरिज्म में। इसकी प्रॉब्लम भी है और इसकी एडवांटेज भी। तो हम इंटेंजिबिलिटी बढ़ा रहे होते हैं। एनी अदर एग्जाम्पल फ्रॉम एनीवन? यस, हम नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ tourism product. Main elements, there are 4 A's of tourism product. We will discuss about 4 A's. These 4 A's are accessibility, accommodation, amenities and attraction. So there are 4 A's. आपको किसी किसी बुक में हो सकता है 3 A's मिले, but I prefer these 4 A's. So any other example of product value increased by intangibility or tangibility? And there is a mix of tangibility and intangibility. Okay. So I'm not taking the traditional attendance today because you all are on my laptop screen and I have taken a snapshot. Yusra is present, Sami Fareed is present, Fauzia is present, Mughta is present, Ahad is present, Iffat is present, Adil is present, and Rifat is present, and Intizar is present. Okay, so we have a attendance, a digital attendance. Okay, thank you. We will discuss about 4 A's of tourism product in the next class. Okay. Thank you. Thank you.